इन 4 पार्ट्स एक्चुअली। फर्स्ट पार्ट इज कंसेशन एग्रीमेंट। आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से क्यों अप्रूवल लेना पड़ता है उसका रीजन होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज। लैंड, वाटर, एयर, इट इज अ शेयर्ड असेट एंड गवर्नमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो अगर आप 1000 एकड़ में कुछ बना रहे हैं तो कंसेशन गवर्नमेंट से ले लीजिए। एक दूसरा प्रिंसिपल होता है विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। No private property for common good can be used. What are the basic contracts during the lifetime of a power generating? First are concession agreement. Large power plant की बात करें, बिना गवर्नमेंट के कंसेशन की those power plants cannot be established. So एक पार्ट होता है concession agreements. Second part होता है germination agreement. So when power plant starts operation, उस समय जो agreements होते हैं वो germination agreement. In 4 parts actually. First part is concession agreement. आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से क्यों अप्रूवल लेना पड़ता है उसका रीजन होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज। लैंड, वाटर, एयर, इट इज अ शेयर्ड असेट एंड गवर्नमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। सो अगर आप 1000 एकड़ में कुछ बना रहे हैं तो कंसेशन गवर्नमेंट से ले लीजिए। एक दूसरा प्रिंसिपल होता है विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। No private property for common good can be used. So this the government will provide. So first is concession agreements. Second stage is germination of power plant. Stage is operations of power plant. And fourth stage is decommissioning, winding up और destruction of power plant. तो ये पूरे stages में अलग अलग तरह के agreements आते हैं. So first agreement जो होता है concession agreement, these concession agreements are required because of 2 principles. First principle is doctrine of essential facilities. वो बोलता है जो पूरा वर्ल्ड है, it is a shared asset. एक प्राइवेट कंपनी को सारा का सारा शेयर्ड असेट नहीं दिया जा सकता, उसमें कंसेशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। दूसरा जो प्रिंसिपल ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर कॉमन गुड। अब इन प्रिंसिपल को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए when you, for example, you are setting up a very large project, whether it is transmission, whether it is generation, whether it is any project, आपको करना पड़ता है implementation agreement बोलते हैं इंडिया में। So you go to the state government और the private parties, they both do a implementation agreement. वहां पे details लिखी जाती है कि भाई this is the type of land you will इतने टाइम के लिए आपका पावर प्रोजेक्ट चलेगा, and basic details, and the state government has no objection. उसके बाद second stage है license. So if you are doing transmission, distribution, trading and supply of electricity, then you have to apply for a license. So you take a license. उसके बाद maybe you will have to do फिर with registration with the nodal agencies. So ये सारे जो registrations है, license है, these are all concession agreements एक तरह से, approvals from the government. Second stage आता है generator. अब जब germination आप करते हो power plant का, so important होता है कि buyer of the power plant should be ready, so you make a power purchase agreement कि भाई 20 years तक, and this power purchase agreement also makes your power project bankable. So if you go with this power purchase agreement, if you go to the bank that I have a consumer for next 25 years, the bank will be happy and willing to give you loans or funding. All right. Then you have to also, if you are a thermal power plant, then you have to have fuel supply agreement in place. तो उसको बोलते हैं FSA, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। लोग कैसे कहते हैं कि सोलर सप्लाई एग्रीमेंट, सोलर इंस्टॉलेशन एग्रीमेंट। सो ये जर्मिनेशन ऑफ पावर प्लांट में हो गया। लेट अस अज्यूम द पावर प्लांट बिकम्स ऑपरेशनल। सो ऑपरेशनल बनने के लिए 2 लेवल्स चाहिए होते हैं। भाई आपने PPA तो ले लिया, बट फंडिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो जो फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स। सो द लोन एग्रीमेंट, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट्स, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट या शेयर होल्डर्स लोन, फिर कई बार सोलर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रीफाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स, गारंटी, क्रेडिट सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, फिर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, हेजिंग एग्रीमेंट्स। ये सब फंडिंग से रिलेटेड होते हैं एग्रीमेंट एट द ऑपरेशन स्टेज। ऑल राइट, बट ऑपरेशन स्टेज में यू हैव टू डील विद अदर वेंडर्स ऑल्सो ना। सो आपको ट्रांसमिट भी तो करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो देयर इज अ ट्रांसमिशन एग्रीमेंट। तो एग्जांपल PGCIL से यू विल हैव अ ट्रांसमिशन एग्रीमेंट, और ट्रांसको से ट्रांसमिशन एग्रीमेंट। फिर उसके बाद आपने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट तो कोल की कंपनी से कर लिया, बट कोल का जो माइनिंग है, माइंस हैं, वो तो छत्तीसगढ़ में है या फिर झारखंड में है।
आपका पावर प्लांट महाराष्ट्र में, so then somebody has to transport that coal to your plant, then it is long term coal transport agreement. So example railways के साथ आपने long term coal transport agreement कर लिया. If you have to get connected to the grid, then grid connection agreement करना होगा. Somebody has to maintain the power plant or maintain the transmission line, then you have to have O&M contract, operation and maintenance contract. और फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट्स वो अलग ऑपरेशन के टाइम में वो करना पड़ेगा. लेट अस अज्यूम अब नेक्स्ट स्टेज आते हैं डीकमिशनिंग की स्टेज. सो इफ you are going for merger and acquisition or somebody is acquiring the company, then there are 2-3 stages. So first stage में आपको assessment of the company करनी पड़ेगी. तो एक तो internal audit हो सकती है, external audit है, उसको हम बोलते हैं due diligence report. So first stage is assessment of the target company. Second stage is negotiation. So when negotiation goes on, then आप एक MOU sign कर लोगे आपस में. दोनों पार्टीज ने अपना इंटरनल लीगल ऑडिट भी कर लिया और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी बना लिया. नाउ दे नो व्हाट इज द पावर प्लांट जिसका ट्रांजैक्शन करना है. सो उसके लिए जब नेगोशिएशंस होंगे सेकेंड स्टेज में, तब लेटर ऑफ इंटेंट इशू करा जाएगा या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और टर्म शीट बनाई जाएगी. थर्ड स्टेज में रोड मैप बनाया जाएगा विच इज कॉल्ड डेफिनेटिव एग्रीमेंट. डिटेलिंग आउट करी जाएगी उस टर्म शीट की. सो एंड कई बार हम लोग एक सिंपल एग्रीमेंट कर लेते हैं विच इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट. सो आप इसको 4 स्टेजेस में ले लो. फर्स्ट स्टेज में कंसेशन एग्रीमेंट्स. कंसेशन एग्रीमेंट्स आर बेसिकली एग्रीमेंट्स विद द गवर्नमेंट विच गिव्स यू कंसेशन टू स्टार्ट योर और ऑपरेट योर पावर प्लांट. सेकेंड इज जर्मिनेशन एग्रीमेंट. सो जर्मिनेशन एग्रीमेंट में आपका पावर परचेज एग्रीमेंट, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, लैंड ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट, लीज डीड, सेल डीड, EPC इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट, दीज आर साइंड इन द फर्स्ट. थर्ड स्टेज में व्हेन पावर प्लांट इज रनिंग, इसमें 2 तरह के एग्रीमेंट्स है. एक तो फाइनेंस एग्रीमेंट. सो प्रोजेक्ट फाइनेंस डॉक्यूमेंट होंगे, लोन एग्रीमेंट, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट जो एग्रीमेंट होंगे ऑपरेशन स्टेज में, दिस ट्रांसमिशन एग्रीमेंट विल बी देयर, लॉन्ग टर्म कोल ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट इज देयर, ग्रिड कनेक्शन एग्रीमेंट इज देयर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ स्टेज में इफ देयर इज डीकमिशनिंग, डीमर्जर और कंपनी इज गोइंग थ्रू वाइंडिंग अप or somebody is acquiring the company, so to assess the target company you have a due diligence report. Once the assessment is made, then you come with letter of intent or MOU is signed, term sheet is drafted, and third stage में final definitive agreement is drafted. 4 stages हैं जहां पे अलग अलग तरह के agreements और contracts बनाए जाते हैं. So hope I have answered the question. Sanvi, back to you.